गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए स्टोरी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन जापान एंड अमेरिका। ड्यूरिंग दिस वॉर, आप सभी जानते हैं क्या हादसा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। हिरोशिमा और नागासाकी पे वर अटैक बाय द अमेरिका। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। उसके बाद की कहानी है। डियर स्टूडेंट्स, एक अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर POW, एक प्रिजनर ऑफ वॉर हु वॉज वॉस्ड आउट ऑफ द सी ओशियन, वो समुद्र से बहता हुआ एक जैपनीज कोस्ट पे आया था। और जैपनीज कोस्ट पे एक जैपनीज डॉक्टर रहते थे जिनका नाम था डॉक्टर सडाओ होकी। डॉक्टर सडाओ होकी वॉज ए बेस्ट सर्जन and he was sent to America at the age of 22. His father, Sadao Hoki's father, was a true Japanese. He was a conventional. He believed in beliefs and traditions of the Japan, and he was a futuristic person. He sent his son to study abroad in America for the medical science. And after 5 years, he came back to the Japan, having completed his degree, and he became a famous surgeon. Dear students, when one day Hannah, his wife, and Dr. Sadao, they were standing in their balcony and they saw a man coming out of the ocean side, because his house was situated on the Japanese coast. And then they found that he was a prisoner of war. He was looking like American. He was wearing the cap. And now the Dr. Sadao was very confused. As a Japanese, he should hand over him to the police, or he should save him as a doctor. Ultimately, with the sound of his conscience, sound of his soul, अंतरात्मा की आवाज़ से, he decided to bring him home, and he was operated. A bullet was pulled out of his body. He was highly injured. He was totally unconscious. He was operated by Dr. Sadao. Now there was a confusion in the mind of Dr. Sadao. He wanted to hand over him to the General Takima, and he wanted to save him as a surgeon. There he was in a dilemma. He was cooperated and he was supported by his wife Hannah. He got married Hannah because he saw first time in the Japan, but his marriage was settled in the Japan. He saw him in America, and after that he was married with Hannah according to the Japanese style and the pattern. So Dr. Sadao was a true patriot. As a patriot, he wanted, it was his duty to hand him over to the Japanese army. Second, he was a surgeon. As a surgeon, it was his moral duty to save the life of a dying person. And he was a family man because he was very concerned and worried about his family. He did not want to put his family into the danger. And he was a very kind and generous. He was a true human being. General Takima, who was suffering from the heart problem, and he needed the surgery. That is why Dr. Sadao was not sent with the Japanese army into the foreign country, because he needed any time. General Takima had won many victories and brought many respect to the nation. He was a popular and the famous person. And one day, Dr. Sadao went to General Takima and he narrated all the story about a war prisoner who was kept in his house. But meantime, the servants of the house became very watchful, and they grew very conscious and the suspicious about the Japanese couple. Yumi was a housemaid, and she was asked to wash the American soldier just before the operation, but she flatly refused. उसने मना कर दिया, बिकॉज जितने भी सर्वेंट्स ये सोच रहे थे, चाहे गार्डनर था, यूमी थी, ये कुक था, सभी सोच रहे थे कि एक अमेरिकन एनिमी है, उसको समुद्र ने नहीं बचाया, नेचर ने नहीं बचाया, हमारा जो ओनर है, हमारा जो मालिक है डॉक्टर, उसको क्यों बचा रहा है। इवन दे डिसाइडेड टू लीव द ड्यूटीज, दे डिसाइडेड टू लीव द जॉब्स। उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर लिया। हन्ना बहुत ही काइंड और कोऑपरेटिव और केयरिंग थी, उसने उनका सब हिसाब किताब भी कर दिया। दे वर पेड अकॉर्डिंग टू देयर सैलरीज एंड द जॉब्स, बट डॉक्टर कपल वॉज इन ए डिलेमा। General Takima, he was a famous person. He was a selfish person. क्योंकि सेल्फिश कैसे था?
उसने जापानीज डॉक्टर को यानी कि डॉक्टर सडाओ को आर्मी के साथ नहीं भेजा क्योंकि उसके ऑपरेशन की ज़रूरत थी। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन था। ही वॉज कन्फाइंड टू इज इलनेस और इज कॉन्शियस इज फैमिली ओनली एंड नॉट फेटफुल टुवर्ड द ड्यूटीज़। उसने डॉक्टर सडाओ को बोला था कि मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ जान लिया है, आपके घर में एक अमेरिकन एनिमी है, आपने उसको ऑपरेट कर दिया, आपने उसका ऑपरेशन भी कर दिया सक्सेसफुली, यू आर ए गुड डॉक्टर, लेकिन यू आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी, मुझे कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपकी समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ, मैं आपके घर में असैसिन भेज दूंगा, किलर भेज दूंगा। असैसिन होते शार्प शूटर्स, और वो उसको मार देंगे और डेड बॉडी को भी हटा देंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर सडाओ ने ये बात अपनी वाइफ को भी नहीं बताई क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही सेंसिटिव थी, और उसने एक रात इंतज़ार किया, सेकंड रात इंतज़ार किया, थर्ड नाइट इंतज़ार किया, बट जनरल टाकीमा वाज सो मच क्रिटिकल एंड सीरियस, ही कुड नॉट सेंड द किलर्स टू किल द एनिमी सोल्जर। अंत में वो बहुत ही डरा हुआ था, बड़ी डिलेमा में था, बड़ा कन्फ्यूजन में था। अंत में उसने फैसला किया अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, एक बार फिर वो कन्फ्यूजन में था। ही डिसाइडेड टू मेक द एनिमी सोल्जर एस्केप फ्रॉम द हाउस। ही अरेंज क्लॉथिंग, बोट एंड फ्लैश लाइट, और आइलैंड के पास उसको भेज दिया। ही सजेस्टेड एंड गाइडेड टू एस्केप फ्रॉम देयर। अल्टीमेटली उसका एस्केप करवाने में डॉक्टर सडाओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जनरल टाकीमा को पता चल जाता है कि वो भाग गया, लेकिन जनरल टाकीमा के बारे में जब हालचाल पूछने के लिए उसके घर में जाता है, डॉक्टर सडाओ पूछता है, वाई डिडेंट यू सेंड द किलर्स टू किल द एनिमी सोल्जर बट ही हैज एस्केप्ड अवे। जनरल टाकीमा गेव ए reply that I was suffering from a critical problem, I was confined to my illness, I could not send the killers. It was not the lack of the nationality, it was not the lack of the duty, it was not the lack of the commitment, but his illness stood in this mission. His illness stopped him to send the killer. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम। डॉक्टर सडाओ उसका एस्केप करवाने के बाद अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था और वो अमेरिका के बारे में सोच रहा था, वो हना के बारे में सोच रहा था, वो उस एनिमी सोल्जर्स के बारे में सोच रहा था कि वाई कुडंट आई किल हिम, वाई कुडंट आई हैंड हिम ओवर टू द आर्मी और जनरल टाकीमा। ये विचार उसके, ये ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। तो अब इस स्टोरी के बारे में हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करना चाहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर सडाओ होकी। डॉक्टर सडाओ होकी वाज ए फेमस सर्जन, ही प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टोरी, ही वाज ए ट्रू पैट्रियट। वो बहुत अच्छा देशभगत था और बहुत अच्छा सर्जन था और बहुत अच्छा फैमिली मैन था, काइंड हार्टेड और जनरस था। एंड ही स्टूड अबव द नैरो माइंडेडनेस, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। एज ए सर्जन he had operated him and decided to save the life of enemy soldier. It didn't matter whether it was an enemy or it was a countryman, but it was his moral duty to save the life. ये इस लेसन का थीम भी है कि a person should rise above the narrow mindedness, differences on the basis of caste, creed, religion, region and the countries and the nations. A person's motto should be the humanity. ये थीम भी है चैप्टर का। उसके बाद अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसका नाम टॉम था, राइट, टॉम। थर्ड, हना। हना वाज ए वेरी कोऑपरेटिव वाइफ, शी वाज ओबीडिएंट, शी वाज ए पैट्रियट, काइंड एंड केयरिंग एंड शी वाज ए गुड ह्यूमन बींग्स। मोरओवर सडाओज फादर वाज ए कन्वेंशनल ट्रेडिशन और बिलीफ में विश्वास करता था, बहुत ही ट्रू जैपनीज था। until he came to know that the Hana belonged to Japan, he did not get ready to make them married. अभी जनरल टाकीमा का तीसरा कैरेक्टर्स हैं। अब ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है स्टोरी में और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है स्टोरी में रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स आफ्टर दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव कम टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, the explanation, brief explanation of the story, about the characters, about the situations, about the stories related to the Second World War. It was between
जापान एंड द अमेरिका। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को बहुत लॉस हुआ था। हिरोशिमा एंड नागासाकी वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द एटम बम। उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म ही हो गया था। तो दिस इज द स्टोरी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।